Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 6th August 2021 and I am teaching you chapter number 6 and name of the chapter is Birds Our Feather Friends. So, let's do the little recapitulation what we have done in the previous video. So, in the previous video, student, I explained you that birds are very important part of a nature. The word is given indispensable part of a nature. It means birds are very necessary part of the nature because they provide color to the nature and are a very important part of our food chain also. And when we are talking about the food chain, so what is a food chain? A chain that show us how animals, how the plants are eaten by the animals and the animals are eaten by the other animals. So what is a food chain? A food chain which show that how plants are eaten by the animals and then animals are eaten by the other animals. So such a chain is known as a food chain. So when we are talking about the birds, so birds also come in the category of a animals. But how they differ from other animals? They differ from other animals that they move from one place to another. They can fly. They have wings to fly. That make a difference. This is a special feature in the birds that they can fly from one place to another. Okay, after that we discuss that birds are animals with feathers. They have wings to fly and they have backbone also, and birds lay eggs. They are oviparous animals. What type of animals the birds are? Birds are oviparous animals. Okay, birds are oviparous animals. They lay egg. So before laying the eggs, birds make nest by using different materials which they find in their surrounding. Birds make nest by they make nest with the help of the material which they found in their surroundings, and in this nest they lay their eggs, and for many days the birds sit on the eggs and hatch them, and the young one of the birds that comes out from the egg. Is it clear? Now the next thing which we have discussed, how the bird use their beaks and claws to catch, hold and eat their food. So the next thing which I explain you that how the bird are able to eat the food. So for this they use their beaks, claws to catch and hold द फूड. क्लास क्या होते हैं? जो पंजे होते हैं, जैसे हमारे भी नील्स होते हैं ना, तो उनके भी पंजे होते हैं. तो इनसे वो जैसे बर्ड्स पेड़ों पे बैठते हैं तो दे होल्ड द ब्रांचेस विद द हेल्प ऑफ देयर क्लास एंड इवन दे कैच देयर प्री. कुछ बर्ड ऐसे भी होते हैं जो कार्निवोरस कैटेगरी में आते हैं. सो to catch their prey they use the claws also. Okay, next is the, after that we have discussed that the birds have a streamlined body
so it can easily cut the ear. Okay, and bird, the weight of the bird is very light. Why? Reason is the bones which are present in the body of a birds are hollow bones. उनकी bones क्या होती हैं? खोखली होती हैं अंदर से, इसलिए उनका जो weight होता है बहुत ही light weight होता है. And how the wings are attached to the body by a very strong muscles. जैसे हमारी बॉडी की पूरी मूवमेंट कैसे होती है? बिकॉज muscles are attached to the bones, and due to these muscles the movement of the body, movement of the bones take place, and in this manner we can move. So in the same manner the wings are attached to the body of the bird with a very strong muscles which help them to fly. And wings are covered with different types of a feather: down feather, body feather, flight feather. Okay, down feather, body feather and flight feather. And the next important thing which we have discussed about the bird is that a bird use their tail when they are flying. So to change the direction they use their tail. To change the direction, अपने डायरेक्शन चेंज करने के लिए बर्ड्स क्या यूज करते हैं? टू चेंज द डायरेक्शन द बर्ड्स यूज द टेल. And after that we are discussing the beaks of the bird. Okay, so when we are talking about the beaks of the bird, student, so birds have different types of a beak, and the beaks मतलब होती है जो चोंच होती है. ठीक है, so the birds have different types of the beaks, and why they have different types of a beak? The birds have different types of a beak according to their eating habit. Okay, according to their eating habit. So that is the reason the birds have different types of a beaks. Now, and even they are using their beaks for eating the food also, and even student, they are using the beaks to bring the things like grass, twigs and other things to make the nest, because they lay eggs in the nest, because the birds lay eggs in the nest. So they also use their beaks to bring the things like grass, twigs and other things to make their nest. Now one by one we will discuss different types of a teeth, beaks in the birds. And when I am talking about the teeth, now the question arises, is birds also have teeth like us? So student, the answer is the birds do not have teeth. Birds की क्या teeth नहीं होती हैं. ठीक है, like animals and like us human beings, the birds do not have teeth. बर्ड्स की जो होता है बेटा, बर्ड्स की टीथ नहीं होती हैं. ठीक है, सो उनकी क्या होती हैं? बीक्स होती हैं. सो नाउ वी स्टार्ट वन बाय वन. वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए बीक्स विद द हेल्प ऑफ द बर्ड्स. For example, a parrot. Parrot is a bird. Okay, so a parrot has a strong curved beak. A parrot has a strong curved beak. Okay, so why a parrot has a strong curved beak? Due to the eating habit of the parrot. Okay, so what type of the food they eat? So they eat nuts, seeds, fruits
That is the reason a parrot has a strong curved beaks. So with the help of their beaks they even eat the nuts. ठीक है, जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, देखो जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो शेल्स के जो उनकी जो आउटर कवरिंग होती है बहुत हार्ड होती है, तो उसको ब्रेक करने के लिए, और ये क्या ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं, ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के लिए दैट इज द रीज़न उनकी जो बीक होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग बीक होती है और हल्की सी ये क्या होती है, कर्व्ड होती है, आपने देखी होगी, ठीक है, क्योंकि पैरोट तो हर बच्चे ने देखा होगा, क्योंकि बहुत से लोग पैरोट को ऐसे पेट एनिमल भी घर में रखते हैं, ठीक है, केज में डाल के, पिंजरे में डाल के बहुत से लोग पैरोट को घर में भी रखते हैं, ठीक है, ये आपने देखा होगा। तो पैरोट हैज अ स्ट्रॉन्ग कर्व बीक, नट सीड्स को ब्रेक करना, क्योंकि आप लोग जानते हो सीड्स के अंदर क्या होता है, प्लांट वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था आपको, सीड्स के अंदर क्या होता है, बेबी प्लांट होता है। सो सीड की एक आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, सीड की एक आउटर कवरिंग होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वी से इट एज अ सीड कोट, ठीक है, सीड की जो आउटर कवरिंग होती है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं, ठीक है, द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज नोन एज सीड कोट। टू ब्रेक एंड दैट सीड कोट इज वेरी हार्ड, वो सीड कोट बहुत हार्ड होता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए इनकी बीक कैसी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, इनकी बीक कैसी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि सीड कोट के अंदर बेबी प्लांट होता है और बेबी प्लांट का फूड होता है, उसको ये पैरोट्स खाते हैं, सीड, क्योंकि जब सीड के अंदर क्या होता है, बेबी प्लांट होता है, ठीक है, जब भी आप कभी किसी सीड को वाटर में डाल दो, ग्राम की सीड ले लो, चने की सीड ले लो, ठीक है, उसको वाटर में रात भर छोड़ दो, इन द मॉर्निंग क्या आप ऑब्जर्व करोगे कि वो क्या हो जाएगा, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सारे सीड्स में एक होल होता है जिसमें से वाटर इंटर करता है। सो व्हेन द वाटर इंटर इनसाइड द सीड देन सीड बिकम वेरी सॉफ्ट, उसकी आउटर कवरिंग जो सीड कोट है इजिली निकल जाता है, ठीक है, और उसके अंदर ओपन आप करके देखोगे जो आपको येलो येलो पोर्शन दिखता है वही आपका बेबी प्लांट का फूड होता है, ठीक है, क्योंकि देखो बेटा हम लोग बहुत से सीड्स खाते हैं, बहुत से एडिबल सीड्स हैं, जितने भी हम लोग पल्सेस खाते हैं, जो दालें खाते हो आप लोग, वो सब क्या है, प्लांट्स के सीड्स ही हैं, राइस क्या है, सीड्स है, ठीक है, व्हीट क्या है, सीड है, तो बहुत से एडिबल सीड्स हैं जो हम लोग खाते हैं, तो इसी तरह ये बर्ड्स भी सीड्स खाते हैं, ओके, सो दैट इज द रीजन पैरोट हैज अ स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक एंड इट आल्सो ईट्स द नट्स, ड्राई फ्रूट्स भी खाता है, सीड्स भी खाता है और फ्रूट्स भी खाता है। आप लोग देखते होंगे कि जो मैंगो बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, जहाँ भी मैंगो ट्री होती है वहाँ पे आपको पैरोट देखने के लिए बहुत से मिल जाएंगे, ठीक है, गावा है, अमरूद भी खाते हैं, सो दे ईट मैनी टाइप्स ऑफ ए फ्रूट्स पैरोट, ओके, तो दिस इज द बीक अबाउट द पैरोट। नाउ द नेक्स्ट वी विल डिस्कस स्पैरो। स्पैरो है पिजन, स्पैरो पिजन एंड पीकॉक। सो स्टूडेंट दीज आर आल्सो नेम ऑफ द बर्ड्स, और आप सबने ये बर्ड्स ऑब्जर्व किए होंगे अपने सराउंडिंग्स में। 39 देखिए स्पैरो, स्पैरो को बेटा गौरैया भी बोलते हैं, एक छोटी चिड़िया होती है ब्राउन कलर की, ठीक है, ये ब्राउन कलर की छोटी सी चिड़िया होती है। पिजन कबूतर, ये देखो कबूतर, बहुत लोग कबूतरों को पालते भी हैं, ठीक है, कबूतर के बहुत अलग अलग कलर भी होते हैं, ग्रे कलर में जिसको हम लोग कहते हैं वाइल्ड पिजन्स, जंगली कबूतर, वो ग्रे कलर के होते हैं, वाइट कलर के भी होते हैं, ब्लैक कलर का भी होगा, ब्राउन कलर का भी मिल जाएगा। सो मेनी कलर्स यू विल सी इन द पिजन्स आल्सो एंड पीकॉक, एज यू नो दैट पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, उसके जो फेदर्स होते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, और सबने आपने पीकॉक देखा होगा, 39 जीटीसी में बहुत से पीकॉक हैं और आपके स्कूल में भी बहुत से पीकॉक आते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे बर्ड्स हैं जिनको आपने इजीली अपनी सराउंडिंग्स में देखा है। स्पैरो को भी
पिजन्स हैं और पिकॉक। पिकॉक बहुत से पिकॉक हैं 39 GTC में, मैनी टाइम्स दे कम द स्कूल आल्सो। सो दीज आर द बर्ड्स विच यू हैव ऑलरेडी सीन इन योर सराउंडिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ स्पैरो है, पिजन एंड पिकॉक हैव शॉर्ट बीक। इनकी बीक्स बहुत बड़ी नहीं होती है, दे हैव शॉर्ट एंड पिकॉक and peacock have a short beak. Okay, have a short beak to pick up मतलब उठाना, to pick up and crush seed। ठीक है, तो स्पैरो है, पिजन है और पिकॉक, इनकी बीक्स जो होती है शॉर्ट होती है। ओके, इनकी बीक्स क्या होती है, दे हैव ए शॉर्ट बीक टू पिक अप एंड क्रश सीड्स। ये भी क्या खाते हैं, सीड्स खाते हैं। ठीक है, तो ये सीड्स खाते हैं। क्रश मतलब किसी चीज को दबा के उसके टुकड़े टुकड़े कर देना। ठीक है, किसी चीज को दबा के एकदम उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, तो दैट इज नोन एज द क्रश। और देखो, पिकॉक तो स्नेक को भी खा जाता है। ठीक है, पिकॉक स्नेक भी खाता है। अगर ये सीड्स भी खा रहा है तो ओमनीवोरस में आया, ये स्नेक भी खाता है पिकॉक। ठीक है, सो वी स्पैरो, पिजन एंड पिकॉक का हो गया बेटा, दे हैव ए शॉर्ट बीक टू पिक अप एंड क्रश द सीड। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पिकॉक, पिकॉक आल्सो ईट द स्नेक। ठीक है, स्नेक को भी खा जाता है पिकॉक। Is it clear? Peacock also eat the snake. Now, next is the next category which will be discussed, that is the duck. Now, what type of beak the duck has? Duck has a broad and flat, चौड़ी और फ्लैट बीक होती है डक की। इज इट क्लियर? और मडी वाटर जहां होता है वहां आपको डक बहुत सी देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, जहां मडी वाटर है वहां आपको ये क्लीन वाटर में नहीं मिलती हैं। ठीक है, जहां मड वाला वाटर है वहां पे आपको बहुत से डक्स देखने, और ये भी आप अपने सराउंडिंग्स में डक्स भी आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, सो व्हाट टाइप ऑफ बीक्स द डक्स हैव? दे हैव, ए डक हैज a broad flat beak. Okay, a duck has a broad flat beak. It scoops the muddy water. It scoops, S-C-O-O-P-S, scoops the muddy water So, what is the meaning of this line, student? What is the meaning of this line? A duck has a broad flat beak. It scoops the muddy water. देखो, डक की जो बीक होती है, ठीक है, डक की बीक होती है, आपने जनरली किचन में नहीं देखा होगा तो अपनी मम्मी से बोलना कि किचन में कड़छी दिखाइए। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ दैट? जब मम्मी आप लोग के पल्सेस बनाती हैं, दैट इज अ लिक्विड फॉर्म होता है, पल्सेस बनाती हैं, तो आपकी मम्मी लोग सो दे यूज वो उस समय कड़छी को यूज करते हैं। ठीक है, उनको बनाने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह जो बर्ड्स जो इनकी बीक्स होती है, ये कैसे वाटर में मिलते हैं आपको डक्स? मडी वाटर में। तो ये क्या करते हैं, इनकी बीक ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है और फ्लैट होती है। तो स्कूप करना, जिस तरह आप लोग कड़छी से चीज़ों को मिलाते हो, उठाते हो,
ठीक है, अगर आप किसी को फूड सर्व करते हो तो आपको पता है ना, स्पून, बड़े वाले स्पून आप लोग रेस्टोरेंट ये सब में बड़े वाले स्पून से क्या आप उससे फिल करके चीजें एक दूसरे को सर्व करते हो ना, लिक्विड आइटम्स। तो इन द सेम मैनर इसकी जो बीक है वो ब्रॉड है और फ्लैट है। वो क्या करती है, स्कूप करती है, मतलब मड वाले वाटर में अपनी बीक को डालती है एंड देन व्हाट्स हैपन, पूरा मड और वाटर उसके बीक में चला जाता है। किसके, डक के बीक में चला जाता है। डक के बीक्स में होल्स होते हैं, ठीक है, डक के बीक्स में होल्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये जब स्कूप करती है, मतलब अपनी बीक को जब मडी वाटर में डालती है, क्योंकि मडी वाटर में स्मॉल प्लांट्स होते हैं और छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, छोटे कीड़े आप कह सकते हो, इंसेक्ट्स होते हैं। तो ये क्या करती है, अपनी बीक को मडी वाटर में स्कूप करती है डक एंड शी टेक द वाटर। इनकी बीक क्या होती है, बड़ी होती है, थोड़ी ब्रॉड और फ्लैट होती है। सो इनके जो बीक्स में जो होते हैं होल्स होते हैं। सो व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द यूज ऑफ दीज होल्स। इस होल्स का क्या यूज है बेटा, जब वो मडी वाटर को स्कूप करती है, अपने बीक के अंदर ले लेती है, तो उस होल से मड और वाटर दोनों आउट हो जाता है। बात समझ में आई? देखो बड़े यूनिक मेथड हैं एनिमल्स के फूड लेने के, बड़े यूनिक मेथड हैं। सोचो, ये बीक्स अपने बीक्स में पूरा मड वाटर ले लिया, ठीक है। अब ये जो होल्स इसके बीक्स में प्रेजेंट हैं, तो इसमें से इन होल से वाटर और मड क्या है, आउट हो जाती है। सोचो ये फिल्टर का काम हो रहा है, मड और वाटर आउट हो जाती है और डक के माउथ में, बीक में क्या रह जाता है, स्मॉल प्लांट्स और इंसेक्ट्स, जिसको वो खा जाती है, ठीक है। सो इन दिस मैनर डक ईट द फूड, दैट इज द रीजन दे आर फाउंड इन अ मडी वाटर। ये मडी वाटर में अपनी बीक को स्कूप करती है, वो पूरा गंदा पानी बीक में भर लिया और उसके बीक्स में होल्स होते हैं। फ्रॉम दिस होल मड और वाटर क्या हो जाता है, आउट हो जाता है और उसके बीक में क्या बसते हैं, स्मॉल प्लांट्स बसते हैं और स्मॉल इंसेक्ट्स बसते हैं, जिसको वो खा जाती है। सो इन दिस मैनर द डक्स ईट देयर फूड, ठीक है। डक्स कैसे फूड ईट करती है, आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया होगा। देखो द मड एंड द वाटर, मैंने अभी बताया ना, इट स्कूप्स द मडी वाटर, इट वो अपनी बीक से क्या करती है, स्कूप करती है मडी वाटर को, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, द मड एंड द वाटर फ्लो आउट थ्रू होल्स ऑन द साइड। जो उसकी बीक्स होती है उसके दोनों साइड में छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो मड और वाटर इससे क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। एंड नाउ व्हाट इज लेफ्ट इन द बीक, द लिटिल प्लांट एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम द मडी वाटर स्टे इनसाइड द बीक फॉर द डक टू ईट, okay। So after that what happens, the mud, it scoops the muddy water, then after what happens, the mud and the water, flow out through the होल्स किसमें है बेटा, उसके बीक में, होल्स ऑन द साइड्स में, बीक के साइड्स में, सेंटर में नहीं, ओके। द लिटिल एंड व्हाट इज लेफ्ट इन द बीक, लिटिल प्लांट्स and insects, stay inside, little plants and insects stay inside the beak for the duck to eat, ठीक है। एक बार और रिकैप्चुलेशन करा देता हूं।
जिससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। देखो बर्ड्स की बीक्स कैसी होती हैं, एक बर्ड्स में डक की बीक कैसी होती है बेटा, ए डक हैज ए ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, ब्रॉड चौड़ी होती है और आगे से फ्लैट होती है, ठीक है। इट स्कूप्स द मडी वाटर, इसीलिए मैंने बोला जैसे मम्मी लोग कड़छी से खाना सर्व करती है ना, वो थोड़ा सा इस तरह कर्व शेप की होती है, इस तरह कर्व शेप की होती है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, सारा मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। सो इन दिस मैनर दे सर्व द फूड। तो अब इसी तरह इनकी भी क्या होती है, बीक होती है। इट स्कूप्स द मडी वाटर, और डक आपको कहाँ मिलेंगी बेटा, मडी वाटर में। तो वो मडी वाटर में जब अपने बीक को डालती है, देन इट टेक मड एंड वाटर, उस पूरे मडी वाटर को अपने किस में ले लेती है, बीक में ले लेती है। और बीक के साइड्स में क्या होते हैं बेटा, होल्स होते हैं। तो इस होल में से क्या होता है, अपने आप ही मड और वाटर क्या होते हैं, आउट हो जाते हैं, फ्लो आउट थ्रू द होल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द बीक। तो ये जो होल साइड ऑफ द बीक में प्रेजेंट है, इससे मड और वाटर क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। अब जो उसके बीक में व्हाट इज लेफ्ट इन द बीक, तो स्मॉल स्मॉल प्लांट्स और इंसेक्ट, छोटे कीड़े मकोड़े उसके बीक में रह जाते हैं, जिसको वो ईट कर लेती है। सो इन दिस मैनर द बर्ड, इन दिस मैनर द डक ईट देयर फूड, ठीक है। और आपने एक चीज अभी तो खैर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वेडिंग क्लेमिंग, ये नहीं, ठीक है। अभी जब हम लोग फीट एंड क्ला का डिस्कस करेंगे तब हम लोग डक्स के फिट के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग बीक्स की बात कर रहे हैं, तो अभी नहीं। व्हेन वी टॉक अबाउट द फिट एंड क्लास ऑफ द बर्ड्स, एट दैट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे कि बर्ड्स के फिट कैसे होते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द ह्यूमिंग बर्ड। Next is the hummingbird. H-U hummingbird. Okay, देखो see the picture which is given in your book. This is a picture of a parrot, this is a picture of the duck, and this is a picture of a pigeon. Is it clear? Now this picture is of a hummingbird, and see the beak is in the touch of a flower. Beak किसके टच में है? This is a picture. Where is my finger? See this picture. You see that the bird beak is in the flower. Okay. तो हमिंग बर्ड क्या होता है बेटा, इसकी जो बीक होती है, इट्स अ वेरी स्मॉल बर्ड, ठीक है। ये बहुत बड़ा बर्ड नहीं है, ये स्मॉल बर्ड है। और इसके ये क्या करता है, फ्लावर्स, यू नो इन द पेटल्स होते हैं फ्लावर्स के पार्ट, अभी सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, सेपल्स है, पेटल्स है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है, वो अभी आप हायर क्लास में भी आके पढ़ोगे। तो सेंटर में, फ्लावर के सेंटर में क्या होता है, नेक्टर होता है, ठीक है। तो ये नेक्टर भी क्या है, फूड है, ठीक है। जैसे मधुमक्खियां आप देखोगे इन विच सीजन, स्पेशली इन द स्प्रिंग सीजन, देयर आर लॉट ऑफ फ्लावर्स। स्प्रिंग सीजन में बहुत ज्यादा फ्लावर होते हैं, ठीक है। स्प्रिंग सीजन में बहुत ज्यादा फ्लावर्स होते हैं, एंड यू विल सी लॉट ऑफ हनी बीज। व्हाई दे गो टू द फ्लावर, टू टेक द नेक्टर, एंड नेक्टर इज प्रेजेंट इन द फ्लावर्स। फ्लावर्स में क्या होता है, नेक्टर होता है। तो हमिंग बर्ड जो है, ये भी बहुत स्मॉल बर्ड है, और इसकी जो बीक होती है वो स्ट्रा की तरह होती है। जैसे स्ट्रा का एग्जांपल ले लो, जैसे आप लोग फ्रूटी पीते होगे, अमूल की लस्सी पीते होगे, उसके संग एक पाइप मिलती है आपको, ठीक है। यू पुट टैप, आप उसका
पैक का होल ओपन करते हो, फ्रॉम दैट होल यू पुट द पाइप एंड देन यू ड्रिंक उन जूसेस को, फिर आप इस ढंग से ड्रिंक करते हो। ठीक है, तो इस बर्ड की जो बीक है वो स्ट्रॉ की तरह होती है, बिकॉज इट्स फूड इज nectar and nectar it get from the flowers. Okay, we will continue this topic in the next video. Thank you student.